स्थगन प्रस्ताव की किसी भी सूचना के लिए अनुमति प्रदान नहीं की है। सभा पटल पर रखने वाले पत्र आइटम नंबर 2 माननीय श्री मनोहर लाल जी। सभापति महोदय, पेपर ले। with your permission, I rise to lay the papers listed against my name at serial number 2 in today's revised list of business. धन्यवाद। आइटम नंबर 3 श्री श्रीपद यशु नायक जी। Sir, I rise to lay on the table of the House the paper mentioned against my name at serial number 3 of today's revised list of business. धन्यवाद जी। आइटम नंबर 4 सुश्री शुभा करंडवाला जी। माननीय अध्यक्ष जी, I rise to lay the papers of the table mentioned against my name at serial number 4 in today's list of business. प्लीज ये उचित नहीं है। आइटम नंबर 5 श्री अजय तमता जी। महोदय, आपकी अनुमति से मैं संशोधित कार्यसूची के क्रम संख्या 5 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित पत्रों को सदन के पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 6 श्री नवनीत सिंह जी। Respected sir, with your kind permission, I raise to lay the papers listed against my name at serial number 6 in today's revised list of business. आइटम नंबर 7 श्री सतीश चंद्र दुबे जी। महोदय, आपकी अनुमति से कार्य सूची में मेरे सहयोगी माननीय पोखन साहू जी, राज्य मंत्री आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय के नाम के सम्मुख कर्म संख्या 7 पर उल्लेखित कागजातों को सभा पटल पर रखता हूँ। आइटम नंबर 8 श्री मुरलीधर मजूल जी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की संशोधित कार्य सूची में क्रम संख्या 8 पर मेरे नाम के सामने उल्लेखित कागजात सदन के पटल पर रखता हूँ। प्लीज आप लोग बैठिए, सदन चलाने में आप मदद कीजिए। प्लीज आप लोग बैठिए। सदन आप चलाना चाहते हैं? आप सदन नहीं चलाना चाहते हैं? सदन नहीं चलाना चाहते हैं आप? सभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। बाकी 2 बजे कर लेंगे जब बाकी 2 बजे कर लेंगे जब स्टेटमेंट देंगे। नहीं, आपने जो इस अमेरिका का जो इंसिडेंट हुआ वही 2 बजे नहीं, उसके बारे में आपने डायरेक्शन दिया, तब सरकार ने उसको मान लिया। नहीं सर, सरकार सोमोटो तो नहीं बोलना चाहती थी, लेकिन आपका प्रभाव इतना हो गया कि अल्टीमेटली उनको एग्री होना पड़ा, इसलिए आपको धन्यवाद। तो मेरा प्रभाव इतना रहा कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने सो मोटो मेरे को आकर ये कह दिया। यू वांट टू से समथिंग? Sir, I just wanted to say that what you had were gracious enough to mention, which was that I came to you, sir, this morning, Yes. saying that this is an issue on which the House should be informed. Yes. So I'm so glad that this point was brought out by you. And it is in fitness of things that Parliament should be taken into confidence on all issues of public importance and national importance. So we can express some kind of thanks to the Honorable External Affairs Minister. Question number 31, Shrimati J.B. Mathiar Hisam. Honorable Minister. सभापति महोदय, उत्तर सभा पटल पर रखा गया। Supplementary number 1, Shrimati J.B. Mathiar Hisam. So it is with deep sorrow that I wish to place on record a tragic incident which happened few days ago in Panjarakulli village in Wayanad. A 47-year-old tribal lady was attacked, stalked, and by a man-eating tiger. And there was widespread panic all over Wayanad and also Kerala. We are very concerned about the human-animal
conflict that is constantly happening. It is just not tiger, leopard, wild boar and wild elephants. So it is a matter of grave concern for the people of Wayanad at large, and also that why this is happening is also the climate impact is also there, but exceptionally what is the government doing in this matter is a grave concern. So that my question to the government is, in such circumstances where Kerala, Western Ghats, sir, man and animals, wild animals are being very cruel to people. Let us be kind to them, sir. Please. Sir, let me ask the question. Please. Sir, my question is, what steps the government is doing to put barriers and defense mechanism that man-animal conflict do not happen? Thank you. Also, when the agriculture is being affected, whether you will provide compensation for cultivation? One question only, please. माननीय उपसभापति महोदय, माननीय सदस्य का जो प्रश्न था वो क्लाइमेट चेंज को था लेकर के था, लेकिन उन्होंने जो उत्तर पूछा है अपने सप्लीमेंट क्वेश्चन का वो एक दूसरा प्रश्न है जो मैन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर के है। जो केरल में इंसिडेंट हुआ है उसमें जो कंपनसेशन के नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से कंपनसेशन दिया जाएगा। जहां तक कार्रवाई करने की बात है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के सेक्शन 11B में स्टेट के जो चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन है वो पूरी तरीके से उनको पावर दी गई है कि वो इस प्रकार के जानवर जो हिंसक होकर के हानि पहुंचा रहे हैं उन पर कार्रवाई कर सकते हैं। मैं समझता हूं केरला सरकार इसके संबंध में संवेदनापूर्ण कार्रवाई करेगी। सेकंड सप्लीमेंट्री प्लीज। So within first 24 hours of becoming President of United States, President Trump withdrew. Your question. Sir, this is climate, very relevant to India, sir. Very climate. President Trump withdrew the Paris Agreement, which is the commitment to climate thing. But now my question to Honorable Minister is whether we as a government, the government is assessing the impact of US withdrawing from the Paris Agreement, because we are worried, thinking the immigration policy of Trump, there is absolutely nothing from the government of India that is happening. So whether in Paris Agreement the government has taken any stand. माननीय सदस्य का जो पूरक प्रश्न है वो मूल प्रश्न से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ नहीं है। जो मल्टीलेटरल दुनिया भर की जितनी भी संधि वार्ताएं होती है उसमें प्रत्येक देश का अपना पक्ष है। भारत की स्पष्ट रूप से मान्यता है कि वो पेरिस एग्रीमेंट में समाधान का पार्ट है, समस्या का नहीं। धन्यवाद। माननीय ऋतव्रत बनर्जी। सर, मैं सप्लीमेंट्री mic, sir. Yes, your mic is on. I think that side. Please. Yeah. Yes. Sir, my supplementary is, in June 2024, sir, the World Bank approved 1.5 billion in loans for India for combating climate change. Over the last several months, the Indian rupee has been constantly falling against the US dollar and now has breached the 87 rupee mark, which is the lowest value of rupee in India's history. Please state, how is the government planning for repayment of these foreign loans and the interest on them when the outstanding amount is rising due to the falling rupee? Thank you. ये प्रश्न पूरक प्रश्न मूल प्रश्न के साथ किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखता है। Thank you. माननीय डॉक्टर जॉन ब्रिटास, प्लीज डॉक्टर जॉन ब्रिटास। So this climate-induced heat waves is a major concern. And study says that between 2013-2022, India reported more than 10,000 deaths due to heat wave or sunstrokes. And so further, the economic hardships for the poor. A report, international report suggests that the loss to the households is more than 5% of their annual income. However, the heat wave is not categorized as a natural disaster, so we cannot give relief to the people. My question to the Honorable Ministry is that, considering the importance of this issue, will you impress upon the other ministries to ensure that heat wave
and sunstrokes are also part of the natural disaster. Thank you, John Britas. ये सच है कि जो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट है वो विभिन्न मंत्रालयों के संबंध में कोऑर्डिनेशन के साथ किया जाता है और इसके संबंध में नेशनल क्लाइमेट का एक एक्शन प्लान है। स्टेट लेवल के हिसाब से भी स्टेट एक्शन प्लान है जिसको समय समय पर बातचीत के द्वारा पूरा किया जाता है। 5वां सप्लीमेंट्री रंजीत रंजन जी। आपके माध्यम से मंत्री साहब से पूछना चाहती हूँ कि ये उत्तराखंड में हिमालय की गोद में चमोली जिले में शंकराचार्य द्वारा 8वीं-9वीं सदी में स्थापित हाट गांव एवं वहां स्थित बद्रीनाथ भगवान का विग्रह रूप लक्ष्मी नारायण मंदिर है, जिसे एएसआई रिपोर्ट द्वारा भी प्रमाणित किया गया। गांव वाले संघर्ष कर रहे हैं क्योंकि इससे छल पूर्वक वहां पे बन रही बांध परियोजना के लिए डंपिंग जोन बनाने हेतु अधिग्रहण किया गया है। तो क्या मेरी सरकार से रिक्वेस्ट है कि हाट गांव को गोद में लेकर जो परंपरागत शैली है उसका पुनर्निर्माण करने के लिए जो डंपिंग जोन बनाया जा रहा है उसको हटाया जाएगा और उसको गोद लिया जाएगा और लक्ष्मी नारायण मंदिर को आप सेव करेंगे जो 4 धाम यात्रा के तहत ही आता है। धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय, जो प्रश्न है वो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के संबंध में, हर प्रोजेक्ट में एक एनवायरनमेंट का मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। अगर कोई उल्लंघन है तो माननीय सदस्य महोदय अगर मेरे ध्यान में पर्टिकुलर किस प्रोजेक्ट के लिए वो कह रही हैं ऐसा ध्यान कराएंगे तो निश्चित रूप से वो मेरे से विचार विमर्श करेंगी, तो प्रोजेक्ट अगर ध्यान दिलाएंगे तो उस पर विषय हो सकता है, लेकिन इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं। थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 32 डॉक्टर सैयद नासिर हुसैन। No present, sir. 32. First supplementary. On the table of the House. सर, पहली बार हम लोगों ने देखा था कि हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके दूसरे देश के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कैंपेन किए थे, वो अब सरकार भी बनाए हैं, लेकिन अचानक वो उनके मोदी जी के मित्र प्रेसिडेंट बनते ही सवाल वही है सर। मित्र वहां प्रेसिडेंट बनते ही पहला अटैक हिंदुस्तानियों पे है। हिंदुस्तानियों को जिस तरह से इंसल्ट किया गया, जिस तरह से ह्यूमिलेट किया गया, जिस तरह से चेन पिनाया गया और जिस तरह से चेन पिनाकर बेइज्जती कर भेज रहे हैं। मेरा सवाल यह है, क्या हिंदुस्तान की सरकार के पास एक एरोप्लेन नहीं थी, एक एयरक्राफ्ट नहीं थी अपने लोगों को लाने के लिए? मेरा सवाल यह है, क्या प्रधानमंत्री जो सवाल नहीं जाएगा रिकॉर्ड पे। आपका सवाल मैं बता रहा हूं, मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स अब्रॉड पोस्ट कॉन्फ्लिक्ट एस्केलेशन, ये सवाल है आपका, उसमें आप दूसरी चीज ना पूछे प्लीज। माननीय मंत्री जी प्लीज। सर